السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ فرام ویسٹ ہائی لینڈ وے۔ آج اس ٹریک پہ ہمارا 5واں دن ہو چکا ہے اور آج صبح ہمارے منہ اس لیے ڈھکے ہیں کیونکہ مجیز نے حملہ کر دیا۔ جیسے ہی ہم ٹینٹ سے نکلے تو ہم نے اسپرے وغیرہ بھی کی، ہاتھ پہ لگائے، لوشن بھی، لیکن پھر بھی یہ اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں مجبوراً ان سے بچنے کے لیے یہ پہننا پڑا۔ جسم پہ تو کاٹ رہی ہیں لیکن ایٹ لیسٹ جو چہرہ سیف ہو تو آپ کچھ کر پاتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں یہاں پہ اپنا ٹینٹ پیک کرنا ہے، اس کے علاوہ ناشتہ بن رہا ہے، یہ سب کچھ کر کے ہمیں پھر کنٹینیو کرنا ہے اپنا آج کا ٹریک۔ آج تقریباً ہم 18 سے 19 کلومیٹر کریں گے اور ایک پوائنٹ ہم نے طے کیا ہے، لیٹس سی۔ ہمیں اس ٹریک کے اندر جو پلین راستہ ہے وہ تو سمجھ لیں کہ 30 کلومیٹر بھی ہو تو نو پرابلم، لیکن جہاں پہ اسٹیپ آ جاتی ہے، کوئی پہاڑی، وہ چڑھنا اور پھر اترنا، پھر چڑھنا پھر اترنا، وہ بہت تھکاتی ہے۔ دیکھتے ہیں جی آج کیسا رہتا ہے ہمارا یہ دن۔ موسم تو بڑا زبردست ہے کل کی طرح، لیٹس سی۔ ناشتہ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ ناشتے میں ہم نے یہی اوٹس رکھے ہیں، جمبو اوٹس وتھ کوکونٹ ملک، اور اس کے اندر ڈرائی فروٹس ڈالے ہوئے ہیں، تو یہ کریں گے وتھ شوگر۔ ہم نے ایڈ کر لیے، پہلے شوگر ایڈ نہیں کی تھی تو ذرا یہ عجیب سا ذائقہ تھا، تو اب شوگر بھی ایڈ کر لیے۔ آج صبح سے جو ہائکنگ شروع کی مکمل سٹیپ ہے، لیکن سپیڈ اچھی تھی، اس لیے تقریباً 50 منٹ میں 3 کلومیٹر ہم نے کر لیا، اور ابھی بھی بس ہم اوپر جا رہے۔ 2 راستے تھے، ایک تو نیچے آپ جنگل سے جائیں اور دوسرا یہ پہاڑ سے جائیں۔ تو پہاڑ والا راستہ ذرا اچھا سینک ویو ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کو سینز زیادہ ملتے ہیں، تو وہ نیچے اس طرف وہ لیک ہے، اور یہ راستہ ہمارا آگے کی طرف۔ آج ہمیں بقیہ تقریباً 15 کلومیٹر ہمارا راستہ ہے جو طے کرنا ہے۔ لو پاس یہاں پہ آ کے مل جاتا ہے اس کے ساتھ، وہ جو نیچے سے راستہ آتا ہے وہ یہاں پہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اب یہی آپشن ہے کہ آپ کو یہیں سے جانا ہے۔ یہ میموریل کسی کا بنایا گیا ہے، بل لوبان کا۔ 23 نومبر 1975 کو یہ وفات پا گئے اپنے دوست کو بچاتے ہوئے۔ یہ ان کا میموریل بنایا ہے۔ یہاں پہ کوئی سٹوری ہوگی شاید اس جنگل میں، یا پھر ساتھ اس لیک میں بچاتے ہوئے خود بھی مر گئے۔ اچھا، یہ عادل اور عامر بھائی گئے ہیں اوپر، وہاں کوئی کپل ہے جو کہ لاسٹ ہو گیا ہے، غلط ٹریک پہ چڑھ گیا اور آگے سے بلاکڈ ہے، اور آگے انہوں نے ہیلپ مانگی ہے۔ اپنی جو سائیکلز ہیں وہ اس گرل کے اوپر سے اتار کے نیچے لے کے آ رہے ہیں۔ I don't think so. اوپر سے فینس کراس کرنا پڑے گا۔ عادل یہ راستہ کس طرف؟ یہ راستہ بھول گئے تھے، کچھ سیاح جا رہے تھے، تو اب ان کو باڑ کی اس طرف کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ دقت یہ تھی کہ سائیکل تھے نا، تو انہوں نے کہا ہماری ہیلپ کریں، تو ہم نے کہا اچھا یار، اچھا فیل ہو رہا ہے گوروں کی ہیلپ کر۔ مطلب وہ بہت سی جگہوں پہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ عدلے کا بدلہ ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم نے بھی ان کی ہیلپ کی۔
एटिकेट्स देखिए, हमने उनकी थोड़ी सी हेल्प की है और वो उन्होंने जेब से पैसे निकालते हुए कि हम आपको पे करें, हमने कहा नहीं डेफिनेटली नॉट। तो फिर उन्होंने ये निकाला कि प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लें। हमने कहा हाँ ये एक्सेप्ट हम कर सकते हैं, हेलो। तो ये फिर हमने एक्सेप्ट कर ली। कौन सी ब्लूबेरी की है कोई चॉकलेट, सुभान अल्लाह। मुझे दें, ये सिर्फ दिखाने के लिए दी थी मैंने इनको। जी इधर मिनट लग रहे हैं, खा रहे हैं हमने। We lost record of the time. क्रूज़ लोख लमोंड, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे लोग आके ये एक बड़ी क्रूज़ करते हैं और इसके अंदर आई थिंक कोई आधे पौने घंटे की राइड है, क्योंकि जब हम वहाँ से आ रहे थे तो ये शिप उस तरफ जा रही थी और अभी वापस आई है तकरीबन 35-45 मिनट के करीब। और ये बड़ी खूबसूरत प्लेस है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करके ज़्यादातर लोग अपने प्राइवेट और पब्लिक क्रूज़ में यहाँ इस लेक की सैर को जाते हैं। बहुत बड़ी लेक है, इतनी बड़ी है कि हम 2 दिनों से इसके साथ चल रहे हैं और अभी आई थिंक 2 दिन मज़ीद चलेंगे। नीचे जहाँ हम पहले रुके थे वो इन्वर्सनेड होटल था और उससे तकरीबन 1.3 किलोमीटर ऊपर ये इन्वर्सनेड बंक हाउस, यहाँ पे आपको हॉस्टल टाइप बंक बेड भी मिल जाते हैं और कैंपिंग की जगह भी होती है। तो चलते हैं यहाँ, पूछते हैं क्या रेट्स हैं इनके, और स्पेस अवेलेबल हुई तो हमारा इरादा है कि आज यहाँ रुकते हैं। ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के झंडे लगे हुए हैं, अपना झंडा तो नहीं नज़र आ रहा। ये हमारे ट्रिप में पहला कोई होटल या हॉस्टल है जिसमें हम गए, वरना हम शुरू से अब तक कैंपिंग ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्या सीन है, मिजेज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि जगह जगह उन्होंने नेट लगा रखे हैं और उसका मतलब ये है कि रात को बाहर बैठना ज़रा मुश्किल है। अच्छा, ये इनका डाइनिंग एरिया, रेस्टोरेंट, रिसेप्शन सब इधर। दिस वन इज़ अ गुड प्लेस, लेट्स सी एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, डिनर भी है, लेकिन हम डिनर तो अपना ही करेंगे, ब्रेकफास्ट इनका ट्राई करेंगे। टेंट हमारा लग गया है, यकीनन टाइम लैप्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये कुछ इस तरह से शेड का बड़ा मज़ा होता है ऐसे मौसम में, ख़ास तौर पे जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी फील हो ना। तो ये अभी हम खोल देंगे सारे उसके वो जिप्स और इधर से भी ओपन कर देंगे तो हवा क्रॉस होती रहेगी और ये बड़ा ज़बरदस्त। सर्दी का तो पूछिए मत, हम जब कॉनिक हिल्स पे रुके थे तो उस दिन बहुत सर्दी थी, लेकिन इस टेंट ने हमें बिल्कुल फील नहीं होने दी। शेफ़ मोहम्मद आमिर साहब अपनी पूरी तैयारियों में पानी गर्म कर चुके हैं और अब आके पानी फेंकेंगे और सीधा छक्का। ये जनाब हमारे ड्राइड राइस मील तैयार है, ये पानी के साथ। अब ये बिस्मिल्लाह, क्या बात है जी,
सुभान अल्लाह। ये ऐसे हो जाते हैं भाई जैसे अभी अभी पक्के चूल्हे से उतरे हैं। ये फ्लैग जब गौर किया तो पता चला कि ये ट्रैवलर वाइज या कंट्री वाइज नहीं है, बल्कि फुटबॉल के हिसाब से जिन टीमों ने फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला ये उनके झंडे हैं। वैसे बताइए, हमने तो यही गैस किया है, आपको इसमें कोई टीम नज़र आ रही है जिसका झंडा लगा है और उसने वर्ल्ड कप नहीं खेला, या वो फुटबॉल की कोई फेमस टीम नहीं है? 5 मिनट तो हो गए भाई। माशाल्लाह जी, मील तैयार हो गया है और ये इसके ऊपर छिड़काव किया जा रहा है ऑलिव ऑयल का। हाँ जी, बाइट लेना ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मोहसिन भाई, ये खाना तैयार हो गया तरीके से, ठीक है। हाँ जी, ये नीचे इसका मसाला भी पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मसाला बराबर है आज, कीमा, सब्जी, स्पाइस बराबर अभी। चावल, सब हाँ नीचे होगा ज़रा। बिल्कुल घर पे चावल पर ये अलग अलग। इस हॉस्टल के लॉन में हमें ये टेंट स्पेस 15 पाउंड पर पर्सन के हिसाब से मिली, लेकिन उसके पैसे अभी पूरे हो गए। हम तकरीबन 4 दिन से ट्रैक पे चल रहे थे, कोई प्लेस नहीं आई, कहीं रुके नहीं, और 4 दिन बाद जाके आज नहाए हैं, कपड़े चेंज किए हैं। पिछले 3 दिन सर्द मौसम था, कपड़े तब्दील करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन आज का दिन ज़रा गर्म था, इसलिए हमें पसीना आया और दिल किया कि यार आज जो है कपड़े चेंज होने चाहिए और नहाना चाहिए। तो हम यहाँ पे रुके तो 15 पाउंड जो हैं वो पानी का पहला कतरा सर पे गिरते ही वो पूरे हो गए। तो अब बड़ा इजी फील कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रैक करते हैं वो इस सूरत-ए-हाल को समझते होंगे कि आप जब ट्रैक पे जाते हैं तो आपको कई दिन जो है वो नहाने के बगैर गुजारने पड़ सकते हैं। शरई ज़रूरत हो तो फिर तो चांस ही कोई नहीं, आप डिले नहीं कर सकते, लेकिन अगर तबई ज़रूरत है और उसमें आप डिले करते हैं तो इट्स ओके। ये स्पोर्ट्स है, ये एक्टिविटी है, तो उसके हिसाब से ही आप चलते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा है, कुछ कपड़े हमने धो के लटका दिए हैं, फ्रेश हो गए हैं, कपड़े चेंज कर लिए, अभी सामान समेटेंगे, अंदर रखेंगे और वहाँ बैठ के अभी हम कॉफ़ी इंजॉय करेंगे।